Now after the syphilis, let's start discussion regarding the HIV, that is the human immunovirus. Like there's one more bacterial infection which we left actually from the STD, that was the chlamydial infection. Chlamydia trachomatis के कारण होता है, that we will discuss after the HIV, no issue. So HIV, human immunovirus, one of the very severe viral infection which comes under the STD, sexually transmitted disease. Human like at the beginning of the STD के beginning में मैंने आपसे पूछा था what are the types of HIV. So what are the types of HIV? There are two types. One is the HIV-1 and HIV-2. Which is more serious? HIV-1 is more serious than the HIV-2. If a patient develops HIV-1 infection very easily, like approximately with the age like around, you can say around 8 to 10 years में patient की death हो जाती है, because जो infection होता है HIV-1 virus, उसका multiplication बहुत fast होता है. It multiplies in the body very rapidly, so that patient may die very soon. So HIV-1 is quite serious, या quite infectious than the HIV-2. Now the question is, what is what HIV infection is doing in the body? क्या काम करता है? It is an HIV infection जो होता है, it mainly attack on the immune system of the body. So what will happen? The patient develops immunodeficiency. What will happen? The patient develops immunodeficiency. Why? Because HIV virus mainly attack on the immune system of the body. Now which immune system it will attack? For the immune system, our body contains like lymphocytes, like T lymphocytes or B lymphocytes. Lymphocytes usually दो प्रकार के होते हैं, like B and T. B lymphocytes usually which are developed by the bone marrow, which produce in the bone marrow, mature in the bone marrow, which are called B lymphocytes. So basically the lymphocytes दो टाइप के होते हैं, B and T. B lymphocytes, everything occur in the bone marrow. सब कुछ bone marrow में होता है. Maturation, development, everything takes place in the bone marrow. T lymphocytes, they are produced by the bone marrow. They are produced by the bone marrow, but maturation takes place in the thymus gland. Where? Thymus gland, the retrosternal gland जो होता है thymus gland. Maturation of the T lymphocytes, the maturation of T lymphocytes occurs in the thymus gland. That's what the T, from the thymus gland the word T has came. All right. Now very important, HIV virus attack on the T lymphocytes. HIV virus attack on the T lymphocytes. Now let me tell you regarding the different types of T lymphocytes. T lymphocytes usually have three common types. Like in the when you go little bit deep, you may see you may read about some 6 or 7 types of T lymphocytes. But here for very common for you guys, 3 are enough. Number 1, T lymphocytes, that is the CD4. Next is the CD8. CD4 is also called as a T4. CD8 also called as a T8. CD4 is also called as a T helper cells, and CD8 is called as a T killer cells. One more lymphocyte which is left, that is the T suppressor cells. So these are the most common type of lymphocytes. Now HIV virus attack on the CD4 or T4 cells. So guys, what are the different types of lymphocytes? There are 3 types of lymphocytes, that is the T4, T8 and T suppressor. T4 or CD4 is also called as a T helper cells. Why it is called as a T helper cells? Because it's called a T helper because it helps, it boosts up the immune system of the body. ये immune system को boost up करता है. T killer means what? T killer is something like a phagocytic activity. Means it directly kill the bacteria or whatever the microbes. T suppressor, what happens? T suppressor को आप regulatory cells भी बोल सकते हो. Whenever the T helper or T killer in the aggressive form, जब ये aggressive हो जाते हैं, T suppressor usually suppress them or it just regulate them. That is the T suppressor cells. Now which is quite important for us? For us important is CD4 cells or T4 cells. Why it is important? Because they are just boosting up the immune system. What is the normal CD count? The normal CD count is
500 to 1500 cells per mm cube. Please remember about this. The normal CD count is 500 to 1500 cells mm cube. That is the normal CD count. What is the normal ratio of CD4 and CD8 cells in a healthy person, a person who is not infected with HIV or anything else? So normal CD4 and CD8 ratio is 2:1. Means what happen? CD4 cells का जो नंबर होता है वो CD8 सेल से जस्ट डबल होता है. That's the normal ratio of CD4 and CD8 cells, 2:1. In HIV, when the HIV in the full blown stage, when the infection in the severe stage, what happens? The CD4 count goes, the ratio of CD4 and CD8 will become 1:2. What it means? CD1 ratio is 1:2. इसका सिंपल मीनिंग आपको यह हुआ कि जो HIV वायरस था that have attack on the CD4 cells, इन पे अटैक किया, इनको किल कर दिया, तो क्या हुआ? CD4 का काउंट कम हो गया, ऑटोमेटिकली CD8 का काउंट बढ़ गया. So this is the basic ratio in the HIV. The ratio is 1:2. In case of HIV, this is a normal healthy person ratio. एक नॉर्मल इंसान के अंदर रेशियो क्या होता है? 2:1. Alright guys, so till now we have discussed regarding the immune system of the body, different types of lymphocyte, B lymphocyte, T lymphocytes. Then we have discussed regarding the types of lymphocytes. We also discussed regarding the normal CD count, that is the 500 to 1500 cells per mm cube. HIV जो conditions होती है, when it is called AIDS, HIV की condition को आप AIDS कब कह सकते हो? When a patient have HIV infection, it can turn into the AIDS. AIDS की full form क्या होती है? Acquired immunodeficiency syndrome. So when a patient will enter into the AIDS stage, when CD count is less than 200 cells per mm cube, the condition is called AIDS. When it is called AIDS, when the CD count is less than 200 cells, when the CD count is less than 200 cells per mm cube, the condition is called AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. अब वो पेशेंट की किस्मत है कि एक बार HIV का इंफेक्शन हो गया उसकी बॉडी में, वो कब एड्स की कंडीशन में स्टेज में एंटर करता है. सम पेशेंट में एंटर इनटू द एड्स स्टेज विदिन 2 years, within 1 year. Some patient may take up to 10 years of time to enter into the AIDS stage. वो किस पे डिपेंड करेगा? That will entirely depend upon their immune system. उनका इम्यून पावर पहले कैसा था? How now they are managing their immune system. अभी वो करंटली कैसे मैनेज कर रहे हैं? हो सकता है पेशेंट इज टोटली like isolated, patient is not at all like he is totally control on his diet, he is not taking any of the like uncooked or unboiled food, he is avoided almost, he has stopped like contact with the other human beings. तो अगर उसकी बॉडी में इंफेक्शन नहीं होगा, बाकी जगह से कांटेक्ट नहीं होगा, देन इन दैट केस हिज इम्यून सिस्टम कैन बी डेवलप फॉर अनदर 8 to 10 years. फाइन. अब चलिए बात करते हैं रिगार्डिंग दी HIV वायरस. अब हम HIV वायरस के बेसिक नेचर के बारे में, उसकी क्या प्रोफिशिएंसी होती है उसके बारे में बात करते हैं. ऑलराइट गाइस, HIV वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रेट्रोवायरस. HIV वायरस को हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रेट्रोवायरस. व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए रेट्रोवायरस? व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेट्रोवायरस? इज बिकॉज इट कंटेन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए रेट्रोवायरस? बिकॉज इट कंटेन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एंजाइम? आई विल टेल यू इन द फ्यूचर. लाइक बट फर्स्टली आप इतना समझिए, like with the help of RNA, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इस एंजाइम की सहायता से क्या होगा? द DNA, कोई भी बॉडी की जो नॉर्मल हमारी बॉडी की हेल्थी सेल्स में जो DNA होगा, इट विल बी ट्रांसक्रिप्टेज इनटू द mRNA. इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द mRNA. mRNA मींस मैसेंजर RNA. तो क्या हुआ? इट इज ए ट्रांसक्रिप्शन. इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. And once the infected mRNA has been entered into the body, it is start developing, it is again transcripted into the infected DNA.
सो क्या होगा, जैसे ही डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट हुआ, दैट एमआरएनए हैज जस्ट मल्टीप्लाइड इन द बॉडी एंड व्हाट हैपेंस, इट विल बी कीप ऑन डेवलपिंग। जो वायरल लोड होगा वो बॉडी में बढ़ता जाएगा। किसी दूसरी बॉडी की सेल्स में, जैसे मान लीजिए दिस बॉडी सेल्स इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड बिकॉज इट कंटेन्स एमआरएनए, व्हेन इट स्टार्ट इन्फेक्टिंग टू द अनदर बॉडी सेल्स, what happens, it will again transcripted into the DNA, but it will not be a normal DNA, it will be a infected DNA. So this is the normal role of retro reverse transcriptase enzyme. So reverse transcriptase enzyme ही पूरा इंजन होता है। everything is depend upon HIV virus. HIV वायरस में सब कुछ क्या है, ये एंजाइम ही है। एक बॉडी की सेल से दूसरी बॉडी सेल, तीसरी बॉडी सेल, चौथी बॉडी सेल, सब जगह पे ट्रांसफर करवाने का काम कौन करेगा, रेट्रो वायरस, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। विदाउट दिस एंजाइम द वायरस कैन नॉट एबल टू मल्टीप्लाई। आगे चल के हम लोग वी विल स्टडी अबाउट द मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ द HIV। देयर आई विल टेल यू अबाउट द NRTI, NNRTI ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो उन ड्रग्स का मेन पर्पस मैं आपको क्या बताऊंगा, दीज ड्रग्स जस्ट इनहिबिट, या मैं ऐसे बोलूंगा प्रोटीएज इनहिबिटर्स। प्रोटीएज इनहिबिटर्स का मतलब द ड्रग विच विल इनहिबिट दिस एंजाइम। आई विल टेल यू न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ड्रग्स, द ड्रग्स विच स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन। तो सारी जितनी भी हम ड्रग्स देते हैं HIV के पेशेंट्स में, ईच एंड एवरी ड्रग हैज द टारगेट ऑफ दिस एंजाइम। सारी ड्रग्स का क्या टारगेट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज द ओनली टारगेट। फाइन। RNA बेसिकली जो HIV वायरस होता है, इट कंटेन्स दी ssRNA। HIV वायरस कंटेन्स दी ssRNA। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ssRNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। इसके पास एक सिंगल चेन पाई जाती है RNA की, इट्स ए सिंगल स्टैंडर्ड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सिंगल स्टैंडर्ड RNA बेसिकली HIV वायरस के पास होता है। सो व्हाट इज द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस, वेरी सिंपल। HIV virus basically contains, all right, HIV virus contains a single standard RNA। एक सिंगल, मैंने आपको बताया, एक सिंगल स्ट्रिप्ड लेयर होती है। ये सारे के सारे RNA वायरस हैं। इन सब के बीच में दिस इज दी एंजाइम, विच एंजाइम, इट इज दी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA था, RNA के अंदर यहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस थी, एंड उस पूरे के पूरे RNA के ऊपर एक कवरिंग थी। उस कवरिंग का नाम क्या होता है, इट्स ए बेसिकली प्रोटीन लेयर, इट्स ए प्रोटीन कवरिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखना, प्रोटीन कवरिंग का नाम क्या है, P24 एंड P18। इसके पास दो टाइप की कवरिंग होती है, P24 एंड P18। मोस्ट कॉमनली हम लोग, जैसे सपोज कोई न्यूबॉर्न बेबी है या किसी भी बच्चा है या किसी भी इंसान है, अगर आप उसके अंदर जल्दी से जल्दी कि उसके रियल में उसकी बॉडी में HIV वायरस है या नहीं है, उसको डायग्नोज करना है, तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं, P24 या PCR24 टेस्ट। बिकॉज ये P क्या है, ये P इट इज ए प्रोटीन कवरिंग लेयर, इट्स ए प्रोटीन कवरिंग विच इज अराउंड दी HIV वायरस RNA। नेक्स्ट वन, इसके ऊपर एक और एनवेलप होता है, दिस प्रोटीन कवरिंग, जो कि मैंने किसका नाम बताया, P24, P फॉर प्रोटीन, P24, P18। इनके ऊपर एक और एनवेलप होता है, जैसे कह सकते हैं ना, किसी एक चीज है उसके ऊपर एक बड़ा लिफाफा बांधा हुआ है, एक एनवेलप है, एंड दिस एनवेलप इज ए ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। तो ग्लाइकोप्रोटीन के लिए मैं वर्ड यूज कर सकता हूं GP, दैट इज दी ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। यहां पे याद रखना GP 41 एंड GP 124, sorry 121, yeah, GP 41 and GP 121. These are the different glycoprotein layers which are just enveloping to the normal protein layer of the HIV virus. वायरस के ऊपर एक प्रोटीन का लेयर था, उसके ऊपर एक बड़ा एनवेलप था, उस एनवेलप का नाम क्या था, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। ऑलराइट, दिस इज ए वेरी कॉमन स्ट्रक्चर। ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर को आप कैसा कह सकते हो, दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन सरफेस, दीज आर दी ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन सरफेस। तो जैसे सपोज कीजिए, अगर HIV वायरस को किसी दूसरी बॉडी, एक बॉडी सेल से दूसरी बॉडी सेल्स में अगर ट्रांसफर होना है या अगर उसको पेनिट्रेट करना है, सबसे पहले उस बॉडी सेल्स के सरफेस पे किसका अटैचमेंट होगा, ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन सरफेस का सबसे पहले उसके साथ अटैचमेंट होगा। तो दिस इज ए वेरी सिंपल और वेरी कॉमन डायग्राम फॉर दी HIV वायरस स्ट्रक्चर। So what did you understand from this? You just understand that sir it contains a ssRNA, इसके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, इट कंटेन्स रेट्रोवायरस दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम,
and it contains a protein layer, it contains a glycoprotein layer. That's it. This is all about the structure of the HIV virus. Fine. Now let me come to the point, like when was the first HIV virus was diagnosed? HIV virus was first diagnosed in the year of 1983 जब इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था in the captainship of Kapil Dev. HIV virus 1983. It was the first HIV virus. It was diagnosed in the Paris. There was some famous scientist, I don't know the name. So it was diagnosed in 1983. In India, now come to the India. In India, first HIV virus was diagnosed in 1986 in Chennai. उस समय चेन्नई को मद्रास कहते थे, चेन्नई. And AIDS patient was in the same year in the Calcutta, sorry, in the Mumbai. तो 1986 के अंदर इंडिया में फर्स्ट टाइम HIV डायग्नोस हुआ इन द चेन्नई, एंड नेक्स्ट इट वाज इन दी मुंबई. देयर वाज दी एड्स पेशेंट. तो HIV पेशेंट किस में कन्वर्ट है गया? एड्स पेशेंट. हो सकता है दूसरा पेशेंट हो, इट इज अनदर पेशेंट, बट दैट पेशेंट हैज ऑलरेडी हैविंग द सिम्टम्स ऑफ एड्स. मतलब उसका इम्यून सिस्टम क्या था? ऑलरेडी डेफिशिएंट था. सो व्हाट हैपेंस नाउ इन द 1986, ये जो डेडली वायरस था, सबसे खतरनाक वायरस, इंडिया में डायग्नोस हुआ. इंडियन गवर्नमेंट टुक द एक्शन, एंड इन द ईयर ऑफ 1987, in the year of 1987 they started the NACO. What is the full form of NACO? That is the National AIDS Control Organization. National AIDS Control Organization, and NACO has suggested for the NACP. Then Government of India has implemented the NACP. What is the full form of NACP? National AIDS Control Program. National AIDS Control Organization बना सबसे पहले. Then after that NACP was organized. That is the National AIDS Control Program, NACP. Fine. So these are the basically governing body for the. अब as of current scenario की अगर हम लोग बात करें, तो currently the HIV program, the NACP program is a joint venture with the tuberculosis control program, RNTCP. The revised national tuberculosis program था, उसके साथ जो joint venture था किसका? National AIDS Control Program का. Why they have attached the HIV program with the tuberculosis program? Very simple concept. Because HIV patients, 99% patients, when they enter into the second stage of HIV, they develop the tuberculosis as a opportunistic infection. So what happens? जो कोई भी पेशेंट जिसको HIV already confirmed है, when they are in the second stage of HIV, the doctor will definitely, as a prophylactic, they will start the tuberculosis drug for the patients. So what happens? They just join the NACP program with the tuberculosis control program. Now guys, like we have discussed regarding the structure of HIV virus, we have discussed regarding the history of HIV virus, ये इंडिया में कब आया, वर्ल्ड में सबसे पहले कब डायग्नोस हुआ, इन सब के बारे में. अब कॉमनली व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ HIV? क्या डिफरेंट स्टेज होती हैं HIV की? सबसे पहले शुरुआती दौर में एट इनिशियल स्टेज HIV की जो सिम्टम्स होते हैं, दे विल हैव जस्ट द फ्लू लाइक सिम्टम्स. पेशेंट जस्ट हैव द फ्लू लाइक symptoms. So like you can say first one, that is the acute infectious stage. Acute infectious stage of the HIV. अब क्या होगा acute infectious stage में? Already mentioned, patient will have flu like symptoms. So here the patient can have fever, myalgia, cold, sore throat. That's it. These are the common symptoms which usually occur in the acute infectious stage of the HIV. These are just हम इनमें से अब किसी को भी नहीं कह सकते कि ये accurately एक HIV का symptom है. These are just the flu-like symptom which can occur in the any of the bacterial or viral infection. Fine. Just the acute infectious stage के बाद second stage जो आती है HIV की, that is the latent phase. आप इसको लेटेंट फेज बोल सकते हो. यू कैन कॉल एज एसिम्टोमेटिक स्टेज. सो व्हाट हैपेंस इन दिस इज द लेटेंट फेज. जैसा कि मैंने आपको सिफिलिस में इसके बारे में डिस्कस किया था. लेटेंट फेज में क्या होता है? पेशेंट के पास सिम्टम्स नहीं होते. पेशेंट इज ऑलमोस्ट एसिम्टोमेटिक फेज. सो ये एसिम्टोमेटिक फेज इन HIV
एसिम्टोमेटिक फेज कैन बी फ्रॉम 1 ईयर टू 10 ईयर्स, ये 1 साल से लेके 10 साल तक भी हो सकती है। मतलब कई पेशेंट्स में 1 ईयर तक सिम्टम्स नहीं होते, सम पेशेंट्स में इवन तो 10 ईयर्स तक भी सिम्टम्स नहीं होते। जिसको 10 ईयर्स तक सिम्टम्स नहीं आते, डेफिनेटली वो कौन सा टाइप का HIV होगा? इट इज HIV 2। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया था इसके बारे में, लेस इन्फेक्शियस स्टेज। सो इन द लेटेंट फेज व्हाट हैपेंस, पेशेंट विल नॉट हैव द सिम्टम्स, बट फ्यू पेशेंट्स, जिसको कौन सा है, ए पेशेंट हु हैव HIV 1, उन दोज पेशेंट्स में फ्यू पेशेंट्स कैन डेवलप दी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, या आप ऐसा कह सकते हो, लेट या स्टार्ट विद दी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड हर्पस जोस्टर इंफेक्शन। तो ये दो इंफेक्शन बेसिकली पेशेंट्स को हो सकते हैं, कौन सी कंडीशन में? इन द केस ऑफ लेटेंट फेज, but most of the time patient will be asymptomatic, but hardly if the patient have HIV 1 infection, then thrombocytopenia मतलब low platelets or herpes zoster infection the patient can develop. That is the second phase of the HIV. Next, the two more stages are remaining. That is like now we will discuss regarding the third stage of HIV. That is the AIDS full blown stage. देखिए तो पेशेंट्स के पास पहले सिम्टम्स नहीं थे. नाउ इन द थर्ड स्टेज पेशेंट डेवलप द सिम्टम्स, सीवियर सिम्टम्स. So third stage of HIV is called AIDS full blown stage. अब क्या होगा? In this stage the real HIV symptoms will appear. इस स्टेज में क्या होगा? The real HIV symptoms will appear. What are the basic symptoms of HIV here? In AIDS full blown stage what happens? Patient CD4 count will be less than 200 cells mm3. मैंने कहा था पेशेंट को आप एड्स कब बोलोगे? व्हेन द पेशेंट CD4 काउंट इज लेस देन 200 सेल्स mm3, देन ओनली यू विल कॉल एज एड्स स्टेज. सो इस स्टेज में काउंट स्लो हो गए, पेशेंट को सिम्टम्स अपीयर होने लग गए. व्हाट आर द सिम्टम्स? पेशेंट विल हैव कंटिन्यूअस फीवर, हाई ग्रेड फीवर, प्रोलॉन्ग्ड persistent fever. Patient will have continuous diarrhea, weight loss, generalized lymphadenopathy, मीन्स लाइक बॉडी में जितने भी बेसिकली जो लिम्फ नोड्स के एरियाज होते हैं, जो अपीरेंट लिम्फ नोड्स हैं विच कैन बी पैल्पेटेड फ्रॉम द आउटसाइड, उस सारे लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी. पेशेंट विल हैव कंटिन्यूअस फीवर, लूज मोशन, वेट लॉस, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी. अदर देन दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द opportunistic infection. इससे पहले आप यहां पे लाइक ये जो ऊपर 4 सिम्टम्स लिखे थे इनके साथ ओरल अल्सर और ऐड कर देना, बिकॉज HIV वायरस जब अपने एड्स फुल ब्लोन में जब CD4 काउंट लेस देन 200 हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के खुद के जो साथी हैं, जो फ्रेंड हैं, वही दुश्मन बन जाते हैं. जैसे सपोज इन ओरल कैविटी वी हैव कैंडिडा एल्बिकेंस विच इज द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ओरल कैविटी. नाउ इट बिकम द एनिमी ऑफ द बॉडी. व्हाट हैपेंस? ओरल जो ओरल कैविटी में जो हमारे पास कैंडिडा एल्बिकेंस था, नाउ इट कॉज दी ओरल अल्सर. इट पेशेंट विल हैव कैंडिडियासिस. Patient can develop oral candidiasis. So what will happen? Patient will have white patches in the mouth and oral ulcer in the mouth. When happens? The AIDS condition में the patient enter करता है, in that stage patient develops the oral ulcers. इसके अलावा continuous fever, high grade fever होगा, डायरिया, वेट लॉस, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी मतलब लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग, एंड पेशेंट विल हैव ऑपर्चुनिटिक इन्फेक्शन. ऑपर्चुनिटिक इन्फेक्शन को आप लोकल लैंग्वेज में अवसरवादी इन्फेक्शन देख कह सकते हो. मींस व्हेनेवर दे गॉट द चांस दे विल जस्ट प्ले देयर क्रिकेट. सो ऑपर्चुनिटिक इन्फेक्शन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेक्शंस आते हैं उनके अंदर आप कह सकते हो PCP एंड अनदर इज दी ट्यूबरकुलोसिस, कैपोसिस सार्कोमा, नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा, ऑलराइट. इनमें दो सबसे ज्यादा कॉमनली है PCP एंड TB. PCP की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए दीज ऑल आर अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन. PCP, ट्यूबरकुलोसिस, कैपोसिस सार्कोमा, नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा, दीज ऑल आर अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन. द फुल फॉर्म ऑफ PCP इज pneumocystic carcini pneumonia.
You already know the full form of TB, that is the tuberculosis. Fine. So PCP full form is pneumocystic carcini pneumonia. तो अगर आपसे कोई पूछे कि एड्स के पेशेंट में, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स में कौन सा न्यूमोनिया वेरी कॉमनली हो सकता है, योर डायरेक्टली आंसर गोज टू दी पीसीपी, दैट इज द न्यूमोसिस्टिक कार्सिनी न्यूमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस. फाइन. केपोसी सार्कोमा, एक नॉर्वे साइंटिस्ट था केपोसी, उसने डायग्नोज किया था केपोसी सार्कोमा का. केपोसी सार्कोमा में क्या होता है, देयर विल बी हार्ड स्किन नोड्यूल्स विल अपीयर टू द पेशेंट. स्किन के ऊपर हार्ड लाइक क्वाइट थिक कह सकते हो आप, नोड्यूल्स विल अपीयर इन दी स्किन. Alright guys, so these are the common type of opportunistic infection. ऐसा मानते हैं जब किसी भी पेशेंट का जब CD4 काउंट लेस देन 350 के आसपास हो, उस पेशेंट को डेफिनेटली दोबारा इम्यूनाइज करवाना चाहिए. किसके लिए? न्यूमोनिया के लिए. न्यूमोनिया की जो न्यूमोकोकल वैक्सीन आता है, पेशेंट शुड रिसीव दी न्यूमोकोकल वैक्सीन. अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है और प्रेग्नेंट मदर के अंदर भी अगर सपोज कीजिए लाइक इफ हर CD काउंट इज लेस, शी शुड ऑल्सो रिसीव दी that is the pneumococcal vaccine just to prevent the pneumonia. Alright, that's in pregnancy. When we can start the HIV treatment, the best time to start the HIV treatment in pregnancy is 14 to 28 week. इसके ऊपर आगे आएंगे हम लोग मैनेजमेंट के अंदर. फाइन. So these are the basically third stage of HIV, that is the AIDS full blown stage. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या था यहाँ पे? Opportunistic infections. So what will happen when the patient is in the third stage? We should isolate the patient. जितना पेशेंट को आइसोलेट रखेंगे उतना पेशेंट्स के लिए फायदा होगा. वाई? पेशेंट्स को कम एंटीबायोटिक देनी पड़ेंगी, पेशेंट्स को बाकी डिजीज उसका लाइफ स्पान जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा. फाइन. बिकॉज लाइक ट्यूबरक्लोसिस इज वेरी कॉमन इन इंडिया. एज यू ऑलरेडी नो द इंडिया इज द हाउस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. सो व्हेनेवर द पेशेंट इन द ऑपर्चुनिटिक इन्फेक्शन, डेफिनेटली हो सकता है उसको निमोनिया ना हो, बट डेफिनेटली ही विल डेवलप द ट्यूबरक्लोसिस. So this is about the third stage of HIV, that is the AIDS full blown stage. Now the fourth stage, that is the last stage of pneumonia, the HIV, that is the tertiary stage. आप यहाँ पे लाइक इसको टर्सरी स्टेज भी कह सकते हो, देयर इज सम अनदर नेम. यहां पे टर्सरी स्टेज में क्या होगा, या आप ऐसा कह सकते हो एंड स्टेज ऑफ HIV. फाइन. हियर द पेशेंट नीड होस्पाइस केयर. पेशेंट को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? होस्पाइस केयर, या यू कैन सी दैट पैलिएटिव केयर. व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्सरी केयर या टर्सरी स्टेज या एंड स्टेज? मीन्स दिस इज द लास्ट स्टेज. पेशेंट जो है वो अपनी मृत्यु शैया पे बैठा है, कभी भी उसकी डेथ हो सकती है. Patient will be highly infectious. He can spread the infection to anyone else. Patient will have lots of opportunistic infection. So what I mentioned here, end stage of the AIDS or HIV. Hospice care, just the symptomatic care या palliative care. Patient को जो symptoms थे, fever था, so for the fever just you give the antipyretics or you give the tepid spongy. अगर pain था, you just given the analgesics, you given the low dose of sedatives, barbiturates. So just treatment according to the symptoms या सिम्टोमेटिक या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इज इनफ फॉर द पेशेंट. बिकॉज अब यहां पर आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते. पेशेंट का जो वायरल लोड था वो काफी बढ़ गया था. लाइक वायरल लोड, अगर पेशेंट का यहां पे बात वायरल लोड की आ रही थी, इफ द वायरल लोड इज लाइक इफ द वायरल कॉपीज इज लेस देन 50 कॉपी पर ml है, तब तक पेशेंट को कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. When the viral copy is less than 50 per ml, it is okay. But when the viral copy goes above 50, you should immediately start the ART or treatment. Suppose कई बार क्या होता है, when the patient is very good, बहुत अच्छे से फॉलो अप कर रहा है, highly educated patient है, अगर HIV पॉजिटिव है, पेशेंट इज जस्ट फॉलोइंग द ART. पेशेंट ART ले रहा है 4 ईयर से 5 ईयर से. व्हाट हैपेंस, द 5 ईयर्स तक कंटिन्यू ART लेगा, रेट्रोवायरस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. देन व्हाट हैपेंस, उसका वायरल लोड और वायरल कॉपी लेस देन 50 चला जाता है. इस कंडीशन में क्या करते हैं आप, कोई भी टेस्ट है आप वेस्टर्न ब्लॉट करोगे वो भी नेगेटिव आएगा. देन पेशेंट विल जस्ट टेक वन सिंगल टेबलेट, हो सकता है जिडोविडिन या नेविरापिन. अदर देन दैट कोई ड्रग्स पेशेंट को जरूरत नहीं होती, बिकॉज उसकी बॉडी में वायरस ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है. बट एवरी ईयर पेशेंट हैज टू गो फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द डायग्नोसिस, बिकॉज व्हेन द वायरल लोड गोज अबव 50 copies per ml, you should start the treatment again. Even though अगर कोई HIV मदर प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट मदर में भी अगर वायरल लोड 50 से कम है, तो हम उस पेशेंट्स के अंदर भी वेजाइनल डिलीवरी परफॉर्म कर सकते हैं. इट विल बी सेफ.
बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था, लेस देन 50 है, इसका मतलब डेफिनेटली जो वायरस है वो स्प्रेडिंग कंडीशन में नहीं है, जो रेट्रोवायरस है उसका अमाउंट काफी कम हो गया है, देन इन दैट केस पेशेंट इज ऑलमोस्ट सेफ. Fine. So guys, this is the last stage of the HIV, that is the tertiary stage. What we have to do, we just need to give the patient hospice care or palliative care to the patient. All right. All right. So my dear students, till now we have already discussed regarding the basics of HIV. Like we have discussed regarding the basic introduction of human immunovirus, different types of HIV. After that we have discussed regarding the different ways, how the HIV virus is infectious for the body, on the which part of the body areas it attack, and how HIV virus disturb to our immune system, on what conditions the CD4 count goes down. Usually HIV is only attacking to the CD4 cells. That is the very most important booster cells for the immune body, for the body. CD4 cells या T4 cells जिसको हम कहते हैं, या T helper cells. All right. When the CD4 count goes below the 200 cells per mm cube, in that condition we call that condition that is the AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. All right. So till now we have discussed regarding the different stages of the HIV, clinical features of the HIV. Basically when the HIV virus was diagnosed in India, when it was diagnosed, and to control the HIV infection in India, what are the governing body the India government is ruling, like NACO, NACP, हमने इन सब के बारे में डिस्कस किया. So now let me discuss regarding the mode of transmission of the HIV. All right. So what are the different routes of HIV transmission, how the HIV virus can transfer from one human being to another human being. तो like HIV we are, हम लोग अभी currently HIV किसके अंडर में पढ़ रहे हैं, we are reading the HIV under the STD, sexually transmitted disease. So definitely first one is through the sexual contact. So most probably the females are more prone for the HIV infections, like they are mainly transferring the HIV infections from one person to another person rather than the male. Why the females are more prone for HIV infection to, like in the case of transmission? Because when you talk about the female in their vulva region or in their genital region, the mucous membrane surface is very high. So due to the high surface area of the mucous membrane, the virus will get more chance for the vulnerability. The virus will get more chance for the growth, and it also the mucous membrane, the mode is very easily transferable from one person to another person. So due to the large mucous area, mucous membrane surface area, the female are more prone for the HIV infection rather than the male. All right. So number one route is through the sexual contact. Next one, and sexual contact के बाद में number two जो route है, that is through the, आप इसको ले सकते हो through the parental route. Parental route means what? Like how will you know this about parental route? Parental route means through the like you can say intravenous route. Like it is very common, this parental route is, आप ऐसा कह सकते हो parental route के अंदर आ सकते हैं like drug addictors, they can get through this parental route. और आप कह सकते हो through the like next parental route के बाद में बोल सकते हो आप लोग blood transfusion या blood products. ब्लड प्रोडक्ट्स में हम लोग कैसे कहोगे? थ्रू द ब्लड प्रोडक्ट्स यू कैन से लाइक थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ऑल राइट. सो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, like if a person is HIV positive and when the patient, the same patient, if they donate the blood and if the blood bank does not screen the patient properly, जो भी blood receive हुआ blood bank को as a donor, तो उस blood का अगर properly screening नहीं हुआ, and the same blood if it is transfused to another healthy person, so that person will be also HIV positive. So through the blood products it can be transferred. Then through the needle stick injury, through the needle stick injury, or through the body, other body secretions. बॉडी सेक्रेशंस में आप कह सकते हो लाइक सलाइवा,
sputum and other secretions. All right. So what happens? The HIV virus can be transferred through the body secretions also, like saliva, through the sputum and other body secretions. Like needle stick injuries are very common in the healthcare personnel, healthcare workers. Those are taking care of the HIV patient. Any staff like through the like paramedical staff or like medical staff, whoever is taking the care of a HIV positive patient, and whenever they give any drugs to the patient, हो सकता है insulin injection हो, heparin injection हो, any IV injection हो, any IM injection, those infected needle if it is pricked to those health personnel, they can be HIV positive. इसके रिस्क कम होती हैं, पॉइंट लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 0.003% रिस्क है अभी तक जो मोस्टली केसेस डायग्नोस हुए उसके बेस पे, बट फिर भी हम लोग इसको एक रूट के अंदर हमेशा लेंगे कि थ्रू द निडल स्टिक इंजरीज ऑल्सो HIV वायरस कैन बी ट्रांसफर्ड. सो गाइज द कॉमन रूट्स फॉर द HIV ट्रांसमिशन आर वेरी कॉमन रूट इज द फर्स्ट कॉमन रूट इज थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. सो होमोसेक्सुअल या हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल दोनों के अंदर ये वेरी कॉमनली होता है. लाइक एनल सेक्स इज ऑल्सो वेरी कॉमन रूट. So through the anal sex also it can be easily transferred. Then parenteral route means through the IV route, intravenous route, like it is very common in the drug addictors. Then blood products, infected blood products. आज के टाइम में ये भी बहुत ज़्यादा commonly हो रहा है, because actually problem क्या होती है, like initially the HIV first period what I told you, that is the symptomatic acute infectious period, उसमें patient को flu-like symptoms आते हैं. Once the patient have the flu-like symptoms, after few months those symptoms will disappear. आफ्टर फ्यू डेज लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 2 to 3 वीक्स के बाद में सारे सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं. एंड नाउ द पेशेंट विल बी इन दी एसिम्टोमेटिक फेज, जिसको मैंने क्या बताया था आप लोगों को, लेटेंट फेज. सो व्हेन द पेशेंट इज इन द लेटेंट फेज, व्हाट हैपेंस इन द लेटेंट फेज, पेशेंट इज ऑलमोस्ट लुक्स लाइक एसिम्टोमेटिक, उसको कोई सिम्टम्स नहीं होते. एंड दिस लेटेंट फेज कैन बी फ्रॉम 1 year to 10 years. And during this latent phase, it is very difficult to diagnose the HIV virus. नेक्स्ट वन, सो थ्रू दी निडल स्टिक इंजुरीज, मैंने इसके बारे में बताया इन द हेल्थ केयर पर्सनल. देन बॉडी सेक्रेशंस लाइक सलाइवा, स्पूटम एंड अदर बॉडी सेक्रेशंस. अदर सेक्रेशंस में लाइक सेमन भी हो सकता है. ऑल राइट. सो गाइज दीज आर द, इसके अलावा भी कुछ और रूट्स हैं जिसके बारे में मैं बता सकता हूँ. लाइक वी कैन टॉक लाइक ब्रेस्ट फीडिंग थ्रू दी ब्रेस्ट फीडिंग थ्रू दी ट्रांसप्लेसेंटल रूट. Transplacental route means through the placenta from the mother to the fetus the HIV virus can be transferred. That is the transplacental route of the HIV. Next is the another one is the last upper one I mentioned, that is the breastfeeding. Yes, definitely through the breastfeeding HIV वायरस के ट्रांसफर होने के चांस होते हैं. अराउंड 10 to 12% इसके आसपास चांस होते हैं. किसके? HIV वायरस के. बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क इज व्हाट, इट्स अ बॉडी सेक्रेशन. So when the breast milk, already I mentioned that it is the body secretions. So through the body secretions HIV virus can be transferred from one human being to another human being. इसीलिए जब कोई HIV positive mother होती है, whenever she is like delivering any newborn baby, we always advise the mother that she should avoid direct breastfeeding. Rather than that, they can provide the milk, either any milk which is available in the breast bank. मिल्क बैंक जो होती है, ब्रेस्ट मिल्क की बैंक होती है आजकल, उस ब्रेस्ट मिल्क बैंक से जिसको कोई हेल्दी वुमेन है जिसको ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वो कोई मिल्क अपना मिल्क, अगर वो मदर अपने मिल्क को स्टोर करती है, दैट मिल्क वी कैन गिव द न्यूबॉर्न बेबी ऑफ HIV पॉजिटिव मदर. अदरवाइज वी कैन गिव सम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स लाइक जो टॉप फीडिंग होती है, टॉप फीडिंग कैन बी गिवन टू द न्यूबॉर्न बेबी. बट वी शुड ऑलवेज एडवाइज द मदर टू अवॉइड द ब्रेस्ट फीडिंग व्हेन शी इज HIV positive. So can we keep the breastfeeding of HIV mother as a clear contraindication or absolute contraindication? No. आप like as per the WHO recommendations, it is clearly mentioned that breastfeeding is not an absolute contraindication in any condition. All right. So what can we can do is like we can just advise the mother, because मदर ने अपने बेबी को डिलीवर किया है, मदर ने अपने बेबी को बर्थ दिया है, तो डेफिनेटली ये मदर का राइट होगा. इट इज अ मदर विश, she wanted to give the breastfeed or she don't want. All right, but हमारी तरफ से as a healthcare personnel, it is our duty to just advise the mother that if you breastfeed your baby, you are already HIV positive. If you feed your baby also will be positive.
अगर आप फीड नहीं करवाओगे तो वहां पर फिर भी काफी हद तक लाइक द हायर प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा चांस है कि आपका बेबी को HIV नहीं होगा। बट अगर आप फीडिंग करवाओगे तो कुछ 10 से 12% चांस या 15% चांस और बढ़ जाएंगे। किस चीज के? HIV पॉजिटिव के। सो उस केस में आप आगे डिसीजन मदर का होता है, डिपेंड अपॉन द मदर विश। इफ शी वांटेड टू गिव ब्रेस्ट फीड शी कैन। Alright guys, so these are the different routes of HIV transmission. Now ये जो एक मैंने ऊपर रूट लिखा है guys, like ट्रांसप्लेसेंटल HIV रूट। ट्रांसप्लेसेंटल HIV रूट के अंदर बिकॉज एज आई टोल्ड यू वेरी रिसेंटली, मैंने अभी आपको HIV की शुरुआत में बताया था कि HIV वायरस इट्स एन वायरल इन्फेक्शन। सो बेसिकली एंड वायरल all the virus or all the viral infections are very prone या high chance from transfer of from mother route from the placental route to the fetal side, because virus का जो totally overall जो diameter होता है, जो size होती है, वो काफी छोटी होती है। प्लेसेंटा के थ्रू from the placenta almost up to 500 deltons, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, अगर उसका साइज 500 डेल्टोन से कम है तो डेफिनेटली दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस। सो HIV वायरस जो होता है इसकी साइज इससे भी छोटी होती है, ओवरऑल डायमीटर। सो व्हाट हैपेंस, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द मदर टू द फीटस। ऑलराइट, प्लेसेंटल रूट को, ट्रांसप्लेसेंटल रूट को के थ्रू HIV वायरस के ट्रांसमिशन को कम करने के लिए व्हाट वी कैन गिव, ट्रांसप्लेसेंटल रूट के थ्रू HIV वायरस ट्रांसफर ना हो एंड टू डिक्रीज द रिस्क वी कैन स्टार्ट दी ART, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। ये यहाँ पर ड्रग्स लिखी हुई हैं, मैं इनके बारे में आगे अभी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी करूंगा आपको। सो ART ड्रग्स, एंटी रेट्रोवायरल थेरापी शुड बी बिगिन अराउंड 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी टू द मदर इफ शी इज HIV पॉजिटिव। Why? Like first trimester of the HIV, we don't start the HIV drugs because during the first trimester the baby is going through the organogenesis process. ऑर्गेनोजेनेसिस के पीरियड में अगर आप मदर को ART ड्रग्स दोगे तो ART ड्रग्स के जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं वो काफी हद तक ज्यादा होते हैं। सो बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में मोस्ट प्रोबेबली लाइक फ्रॉम द 14th वीक से लेके हम लोग मदर को दोबारा से या फर्स्ट टाइम से हम मदर को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या चीज? ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरापी। तो 14 से 28 वीक में हम अपने मदर को डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए। एंड वंस यू स्टार्टेड द ART, अगर एक बार हमने स्टार्ट किया है मदर के लिए, वी शुड कंटिन्यू थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, इवन दो थ्रू एज अ टाइम ऑफ लेबर एंड इवन पोस्ट पार्टम पीरियड ऑल्सो। मतलब लेबर के बाद में भी हमें ART ड्रग्स कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगर एक बार आप स्टार्ट कर दोगे तो उसका फायदा ये होगा कि जो वायरस का रिप्लिकेशन है, वायरस में जैसे आपको मैंने कहा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो RNA एंजाइम है, वो बेसिकली बार बार उसका रिप्लिकेशन है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, उसका इनहिबिशन हो जाएगा। ऑलराइट, अब आगे के मैटर पे चलते हैं। तो ये बेसिक चीजें थी रिगार्डिंग द रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द HIV इन्फेक्शन। सो व्हाट वाज माय टॉपिक? द टॉपिक वाज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द HIV। सो वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ HIV ट्रांसमिशन। नाउ we will discuss regarding the diagnosis of HIV, like how the HIV virus can be diagnosed as early as possible so that we can start vigorous treatment and we can also prevent the transmission of that HIV patients to other patients. Alright guys, so let me see regarding the diagnosis of HIV. Guys, during from our school days, शुरुआती दौर से काफी सालों से हम लोग एक ही पॉइंट पढ़ते आए हैं, व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ HIV या व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट फॉर HIV। हमने हमेशा किसके बारे में पढ़ा? नंबर 1, एलाइजा। एलाइजा की फुल फॉर्म क्या होती है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सो आवर हेडिंग इज डायग्नोसिस ऑफ HIV। तो फर्स्ट सबसे पहला कौन सा हो गया? एलाइजा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। All right, so number 1 test is the ELISA. अब
can we keep ELISA as a confirmatory test? No, we can't keep ELISA as a confirmatory test for the HIV. ELISA is one of the screening tests of the, it is the screening test for HIV. ये HIV वायरस के लिए क्या होता है? इट्स एन स्क्रीनिंग टेस्ट बट नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट. एक्चुअली क्या है, ELISA sensitivity is 99.5%. See, very interesting it is. ELISA जो टेस्ट है इसकी सेंसिटिविटी कितने परसेंटेज होती है? ELISA टेस्ट की सेंसिटिविटी होती है 99.5% के आसपास. मतलब इतना ज्यादा ये रिलायबल होता है. बट 99.5% सेंसिटिविटी है, फिर भी 0.5% तो नहीं है. ऑल राइट, एंड इट्स नॉट स्पेसिफिक. नॉट स्पेसिफिक का मतलब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे सपोज कीजिए लाइक मैंने आपको क्या बताया, इट्स एन इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे टेस्ट है. सो व्हाट हैपेंस, लाइक कोई न्यूबॉर्न मदर है और न्यूबॉर्न मदर के द्वारा सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. अगर सपोज कीजिए कोई न्यूबॉर्न बेबी है विच इज बोर्न विद एन HIV पॉजिटिव मदर. सो व्हाट हैपेंस, अगर मदर HIV पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली मदर की बॉडी से जो HIV एंटीबॉडीज होते हैं, HIV एंटीबॉडीज, दोज एंटीबॉडी विल ट्रांसफर टू दी न्यूबॉर्न या टू दी फीटस. प्लेसेंटा के थ्रू उस बेबी में क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे एंटीबॉडीज डेफिनेटली ट्रांसफर होंगे. कौन से केस में? व्हेन द एनी न्यूबॉर्न बोर्न विद दी HIV पॉजिटिव मदर, सो व्हाट विल हैपन, द न्यूबॉर्न विल हैव HIV एंटीबॉडी. बट अगर उसकी बॉडी में HIV एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं तो देयर आर हायर चांसेस दैट द ELISA टेस्ट विल बी पॉजिटिव. क्या होगा? ELISA टेस्ट पॉजिटिव आएगा. बट क्या ELISA टेस्ट पॉजिटिव है या उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है दैट द बेबी इज पॉजिटिव? नो, नॉट एट ऑल. बेबी के अंदर शुरुआत के अंदर अप टू 1.5 ईयर या अप टू 18 मंथ तक, 18 महीने तक बेबी की बॉडी में HIV एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे या दे कैन बी प्रेजेंट. सो ये एंटीबॉडीज जैसे बेबी बोर्न होगा उसके बाद में धीरे धीरे इनका नंबर, ये एंटीबॉडीज कम होने लग जाते हैं. सो कुछ किस समय तक रह सकते हैं? अप टू 1.5 ईयर, मतलब 18 मंथ तक HIV एंटीबॉडीज कैन बी प्रेजेंट इनटू द न्यूबॉर्न बॉडी. बट हुआ क्या, इफ द एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट डेफिनेटली द ELISA टेस्ट कैन बी पॉजिटिव इन दैट बेबी. बट ये तो कंफर्म नहीं हुआ कि बेबी इज पॉजिटिव. सो ELISA के बजाय, लाइक इंस्टेड ऑफ ELISA, कंफर्मेशन के लिए उस केसेस के अंदर हम क्या करवा सकते हैं? वी कैन गो फॉर वायरल P24 एंटीजन. P24 क्या है? ऑलराइट गाइज, मैं ELISA को खत्म करता हूं यहां पे. सो व्हाट अबाउट द ELISA फुल फॉर्म? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. इट्स एन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द HIV एंड इट्स सेंसिटिविटी इज 99.5%, बट इट इज नॉट स्पेसिफिक. ये स्पेसिफिक नहीं है एंड इट इज नॉट एन कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द HIV. वैसे ELISA टेस्ट को करना काफी इजी है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब उसके कारण बड़े ज्यादा रिसोर्सेज नहीं आते. इसके लिए जो रैपिड किट होती हैं अवेलेबल, उस किट के द्वारा भी हम कर सकते हैं. एंड लाइक इट डोंट रिक्वायर सो मच ऑफ ह्यूमन एनर्जी, सो मच ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज. बट एंड ऑफ द डे वही प्रॉब्लम, व्हाट, लाइक द टेस्ट मेन बी पॉजिटिव बट इट इज नॉट 100% स्पेसिफिक. तो स्पेसिफिक नहीं है, तो अगर एक बार किसी का ELISA पॉजिटिव आया, इफ द पेशेंट ELISA इज positive, what we have to do? Once the ELISA is positive, we have to send the patient for some confirmatory tests like Western blot or some PCR tests. All right. So what happens? HIV के लिए हम लोग ELISA को स्क्रीनिंग में रखेंगे और बाकी के जो आने वाले टेस्ट हैं उनको हम कंफर्मेटरी में रखेंगे. All right guys. So number 2 test, that is the viral P24 antigen test. P24 ये क्या है? इट्स एन कवरिंग प्रोटीन ऑफ HIV वायरस. हमने डिस्कस किया था शुरुआत में अभी, लाइक इनिशियली जैसे लाइक वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस. तो मैंने उस HIV वायरस के चारों तरफ के सरफेस के ऊपर मैंने लाइक दिस इज RNA एंड मैंने क्या कहा था? दिस इज द कवरिंग लेयर विच इज कॉल्ड एज P24.
लाइक प्रोटीन 24 P18 एंड P24 दो अलग अलग इसके ऊपर कवरिंग प्रोटीन होती है. सो P24 एंटीजन इज वेरी इजीली रिकॉग्नाइज. ये बेसिकली कवरिंग प्रोटीन कह सकते हो एंड इट्स एन एंटीजन ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे एंटीजन के स्पेसिफिक बेसिकली रिसेप्टर्स पाए जाते हैं. सो P24 इज व्हाट, इट्स एन कवरिंग प्रोटीन. सो वायरल P24 एंटीजन टेस्ट, और मैंने उस समय भी आपको बताया था P24 के बारे में, मैं बोला कि जब डायग्नोसिस करते हैं तो इसको बहुत कॉमनली यूज किया जाता है इसी प्रोटीन को. फाइन. सो P24 एंटीजन टेस्ट इट इज वेरी यूजफुल in diagnosis of HIV in newborn babies, और आप कह सकते हो in case of infants. Fine. इसके रिजल्ट कैसे रहेंगे? फास्ट रिजल्ट. रिजल्ट विल बी फास्ट. इट इज नॉट एंड सो कॉस्टली. इतना कॉस्टली टेस्ट भी नहीं होता. रिजल्ट भी फास्ट आते हैं, इसके इमीडिएट रिजल्ट आते हैं. एंड इट इज वेरी यूजफुल टेस्ट. लाइक तो कौन से बेबीज के अंदर इट इज ए वेरी यूजफुल टेस्ट इफ द बेबी इज इफ इट इज ए न्यू बॉर्न बेबी और इफ इट इज ए इन्फेंट. क्यों? बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर क्या होता है, द एंटीबॉडीज आर ऑलरेडी प्रेजेंट. द एंटीबॉडीज व्हेन इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेबी, and in that condition you have to be very much specific. You have to go for some antigen antibody test or some other test, but not the ELISA test. उस ELISA के छोड़ के, ELISA के अलावा हमारे पास सबसे ज्यादा सेंसिटिव और सबसे ज्यादा यूजफुल जो टेस्ट होता है, दैट इज दी P24 टेस्ट. P24 एंटीजन टेस्ट. सो प्लीज रिमेंबर दिस वन कि हम कौन से केसेस में ज्यादा यूज करते हैं इसको, P24 को, इन केस ऑफ न्यूबॉर्न और इन केस ऑफ इन्फेंट्स. All right. So dear students, we already discussed regarding ELISA, viral P24. Now let me discuss regarding the Western blot or immunoblot. So Western blot test or immunoblot test, इट्स एन आपके बारे में, इसके बारे में याद रख सकते हो, इट्स एन कंफर्मेटरी टेस्ट. एचआईवी का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट. वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट बोल सकते हो, या इसके अलावा भी कई बार में लाइक इसको अलग से भी मेंशन किया गया है, इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट IFA या इम्यूनोब्लॉट टेस्ट, इम्यूनोफ्लोरोसेंस एसे टेस्ट, और यू कैन से इम्यूनोब्लॉट टेस्ट. Immunofluorescence test या immunoblot test. But most of the time in your exam time you usually will get I think this one, Western blot test. So guys, Western blot is the confirmatory test of the HIV. Fine. इसके बारे में याद रखना, it is time consuming because इसके अंदर जो रिपोर्ट आने में टाइम लगता है वो करीबन 3 to 5 days के आसपास भी लग सकता है, and like more than 48 hours definitely. So it is time consuming, सबसे बड़ी बात. And दूसरी चीज, it is costly, ये महंगा भी होता है, फिर भी कंफर्मेटरी टेस्ट है, मतलब ज्यादा रिलायबिलिटी है, स्पेसिफिक ज्यादा होता है, इट विल गिव मोर एक्यूरेट आंसर्स. So in that case we will still keep as a confirmatory test for the HIV. But on meanwhile what I mentioned is that is the time consuming, it is time consuming, it is costly. All right. So जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, लाइक डेवलपिंग कंट्रीज लाइक एज एशियन कंट्रीज, वहां पे ये काफी हद तक कॉस्टली पड़ता है. उन केसेस को स्क्रीन करना, लाइक इसके थ्रू HIV पेशेंट को कंफर्म करना काफी मुश्किल होता है बिकॉज इसमें पैसे ज्यादा लग रहे हैं. ऑल राइट. सो व्हाट हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, वी कैन गो फॉर लाइक PCR टेस्ट, और हम लोग पहले पेशेंट को ELISA करते हैं एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट. ELISA अगर कंफर्म हुआ पेशेंट का तो व्हाट वी विल डू, वी विल गो फॉर दी वेस्टर्न ब्लॉट. अगर ELISA भी नेगेटिव है तो हमें वेस्टर्न ब्लॉट की ज्यादा करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ELISA की खुद की रिलायबिलिटी जो है वो 90, सेंसिटिविटी जो होती है वो 99.5% होती है. तो पहले ELISA कर लीजिए, ELISA कंफर्म है, देन गो फॉर दी वेस्टर्न ब्लॉट बिकॉज ELISA इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस कॉस्टली, चीप एंड बेस्ट टेस्ट. फाइन. नेक्स्ट वन, अगर किसी पेशेंट का ELISA सपोज कीजिए, इफ द ELISA इज नेगेटिव, if the ELISA is negative and patient have the symptoms like patient is having the vigorous weight loss, persistent diarrhea, lymphadenopathy, prolonged fever,
तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी विल रिपीट द एलाइजा टेस्ट, वी विल रिपीट द एलाइजा टेस्ट आफ्टर 6 मंथ्स। और अगर पेशेंट का एलाइजा नेगेटिव आया है, अगर पेशेंट का एलाइजा नेगेटिव है, पेशेंट हैव द सिम्टम्स, वी कैन डायरेक्टली गो फॉर द वेस्टर्न ब्लॉट ऑल्सो, बिकॉज पेशेंट सिम्टमेटिक है, क्लिनिकली पेशेंट को सिम्टम्स है, बट पेशेंट एलाइजा इज नेगेटिव, बट स्टिल वी कैन गो फॉर द वेस्टर्न ब्लॉट। ये चीज याद रखना आप लोग। इन केस इफ द पेशेंट does not have so much of particular symptoms, but you see that patient is in the vulnerable stage, पेशेंट की जो करंटली जो जो हैबिट्स हैं उसके बेस पे आप कह सकते हो कि इसको HIV पॉजिटिव हो सकता है। यू कैन रिपीट द HIV टेस्ट और एलाइजा टेस्ट आफ्टर द 6 मंथ्स। ऑल राइट, दिस इज अबाउट द वेस्टर्न ब्लॉट। एंड द लास्ट टेस्ट, दैट इज द PCR टेस्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCR टेस्ट? दैट इज द polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction, that is the full form of PCR. All right, so this is about the PCR, polymerase chain reaction. Fine. So guys, these are the different diagnostic tests for the HIV. We will discuss regarding ELISA, viral P24 antigen, western blot, immunoblot जिसको भी साथ में यूज करते हैं, या PCR। कंफर्मेटरी के लिए हम लोग स्क्रीनिंग के लिए ELISA रख सकते हैं, बेबीज के लिए, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए, यंग लाइक इन्फेंट्स के लिए वी कैन गो फॉर वायरल P24, अदरवाइज फॉर द कंफर्मेशन वी कैन गो फॉर द वेस्टर्न ब्लॉट। So these are the different diagnoses of the HIV virus. Now let me jump to the management of HIV. Let's discuss regarding the management of HIV. See, HIV drugs should be started as soon as possible. जितना जल्दी हम लोग HIV ड्रग्स को स्टार्ट करेंगे उतना ही फायदे की बात होगा, बिकॉज व्हाट हैपन्स, जब आप ट्रीटमेंट को जल्दी स्टार्ट करोगे जो वायरस का रिप्लिकेशन है या जो वायरल कॉपीज हैं, वायरल लोड है, वो कम बढ़ेगा और हमारी ड्रग्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होंगी। सो फाइन, सो व्हाट आर द बेसिक ड्रग्स विच कैन यूज इन द HIV पेशेंट? सो दीज आर द ड्रग्स, लिस्ट ऑफ द ड्रग्स विच आर यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ HIV. दीज ड्रग्स आर कॉल्ड एज HAART, as a highly active antiretroviral therapy, HAART. लाइक आप जनरली हॉस्पिटल्स में इसके बारे में ART नाम भी सुनते हो। ART की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी रेट्रोवायरल थेरापी, एंटी रेट्रोवायरल थेरापी। अब मैंने क्या मेंशन कर दिया? हाईली एक्टिव, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरापी। सो दीज आर द, जो भी मैंने ऊपर वहां पे ग्रुप ऑफ ड्रग्स मेंशन किए हैं, दीज ऑल ड्रग्स कम अंडर दी HAART. फाइन। So guys, under the HAART, first of all, number 1 is the NRTI. What is the full form of NRTI? It is nucleoside reverse transcriptase inhibitors. It's a very famous drug, most widely, सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा यूजफुल जो ड्रग होती है दैट इज दी NRTI, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स. नाउ व्हाट आर द ड्रग्स, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्रग्स विच कम अंडर दी? ओके, एक चीज और मैं आपको क्लियरली बता दूं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ART. ये ART बेसिकली करती क्या है? दे बेसिकली प्रिवेंट वायरस रिप्लिकेशन, जो वायरस का रिप्लिकेशन हो रहा था उसको प्रिवेंट करते हैं. दे इनहिबिट दी transcriptase enzyme. What they will do? They just inhibit the transcriptase enzyme also.
तो ये बेसिकली इसके मेन जो फंक्शंस होते हैं इन ड्रग्स के। तो सबसे पहले है एनआरटीआई सॉरी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। तो इसके एग्जांपल्स जिडोव्यूडिन, लेमिव्यूडिन, जेलसिटाबाइन। So guys, what are the examples of NRTI? Examples are zidovudine, lamivudine, gelcitabine. So most of the तो व्यूडिन जिस ड्रग के लास्ट में आता है, most of the words drugs which contains like व्यूडिन they comes under the NRTI. So lamivudine, zidovudine and gelcitabine. सबसे ज्यादा सबसे most widely जो ड्रग यूज होती है that is the zidovudine. All right. These are the basically common drugs which comes under the NRTI. चलिए इसके बाद सेकंड कैटेगरी ड्रग के बारे में बात करते हैं, दैट इज दी पीआई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआई? पीआई मीन्स प्रोटीएज इनहिबिटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआई? पीआई मीन्स नंबर 2 ड्रग्स इज पीआई, दैट इज द प्रोटीएज इनहिबिटर। ऑल राइट, तो प्रोटीएज इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी? एज इट इज ऑलरेडी मेंशन ओवर देयर, इंडिनावीर एंड इट कंटेन्स रिटोनावीर। इंडिनावीर एंड रिटोनावीर आर द बेस्ट ड्रग्स विच कंसिडर अंडर द प्रोटीएज इनहिबिटर्स। तो बेसिकली ये जो ड्रग्स होती है पीआई, प्रोटीएज इनहिबिटर्स, दे बेसिकली इनहिबिट द ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, जो रेट्रोवायरस है, जो रेट्रोवायरस का जो एंजाइम है सॉरी, उस एंजाइम को इनहिबिट करने का काम मेनली ये ड्रग्स करती हैं। सो दीज आर दी प्रोटीएज इनहिबिटर्स। नाउ नंबर 3 ड्रग्स, दैट इज दी NNRTI. Now what is the full form of NNRTI? Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. So what is the example of this? The very famous drug nevirapine. नेविरापाइन। सो गाइज मैंने कहीं पे नेविरापाइन के बारे में डिस्कस भी किया था शायद आप लोगों से। नेविरापाइन जो होती है उसको प्रेगनेंसी में सबसे सेफ ड्रग के रूप में कंसिडर किया जाता है। प्रेगनेंसी की वन ऑफ द वेरी सेफेस्ट ड्रग्स दैट इज दी नेविरापाइन। इसके टॉक्सिक इफेक्ट कम होते हैं एज कंपेयर टू द जिडोविडिन एंड इंडिनावीर। फाइन, नेविरापिन के बारे में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इफ द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इफ शी इज HIV पॉजिटिव, इफ शी हैज नॉट टेकन, इफ शी हैज नॉट स्टार्टेड द एनी ऑफ द ड्रग्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रॉम द 14th week of pregnancy, so she can start the nevirapine as soon as possible, immediate after the birth of the baby or at the time of even the labor also. So नेविरापाइन को देने से क्या होगा? नेविरापाइन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? लाइक अगर आप लेबर के बाद में दोगे तो वो मदर के ऊपर बेसिकली हेल्थ इफेक्टिव, मदर के लिए प्रॉफिटेबल होगा। बट इफ यू गिव नेविरापाइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट बेसिकली व्हाट इज द यूज इज वेरी सिंपल, इट डिक्रीज द ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। ये क्या काम करती है? ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन को कम करती है, एज लाइक जिडोविडिन ओनली। बट जिडोविडिन के टॉक्सिक इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। तो जिडोविडिन के टॉक्सिक इफेक्ट को ज्यादा होने के कारण व्हाट वी कैन डू, वी आर यूजुअली प्रेफरिंग दी नेविरापाइन जस्ट टू प्रिवेंट दी ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन ऑफ दी HIV वायरस फ्रॉम द मदर टू दी फीटस वाया दी प्लेसेंटा। उसको कम करने के लिए भी नेविरापाइन को यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन अगला ये उठा है कि shall we use all the drugs? क्या हम ये सारी ड्रग्स NNRTI, NRTI या प्रोटीएज इनहिबिटर, क्या हम पेशेंट को ये सारी ड्रग्स देंगे? ऑल राइट, एंड इन दैट केस माय आंसर विल बी दैट हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर, लाइक इनको आप जो NRTI होती हैं, NRTI को हम लोग ग्रुप 1 में ऐड करते हैं हमेशा। NRTI comes under the group 1 and these both drugs, which one? Protease inhibitors and NNRTI, they come under the group 2. So what we usually do, हम लोगों को जब basically when we start the treatment,
Start the treatment with triple drugs. Triple drugs means 2+1 formula very best रहेगा. 2+1 formula means what? Means 2 drugs from the group 1 and 1 drug from the group 2. हम ऐसा कर सकते हैं जैसे 2 drugs NRTI की प्लस 1 ड्रग फ्रॉम दी प्रोटीएज इनहिबिटर्स. हम क्या कर सकते हैं, 2 ड्रग्स तो एनआरटीआई, तो मान लीजिए आपने जिडोविडिन ऐड कर दिया और लेमिविडिन यूज कर दिया, तो जिडोविडिन और लेमिविडिन के साथ साथ आपको 1 ड्रग प्रोटीएज इनहिबिटर्स का मतलब इंडिनावीर या रिटोनावीर ऐड कर सकते हो आपको. तो 2+1, 1 ड्रग 2 ड्रग ग्रुप 1 से और 1 ड्रग जो होगा वो ग्रुप 2 से देना है. अब आप यहां पे अगर प्रोटीएज इनहिबिटर्स, जैसे सपोज कीजिए अब आपको ड्रग चेंज कब करना होगा, ड्रग चेंज करना 2 कंडीशंस में होता है. या तो आपको ड्रग का डोज कम करना पड़ सकता है, कब, जब वायरल कॉपी कम होने लग जाए, मतलब वायरल कॉपीज का लोड है वो लेस देन 50 कॉपीज पर ml हो जाए, मतलब वायरस का लोड काफी कम हो गया, तो मदर को इफेक्ट फालतू में एक्स्ट्रा ड्रग क्यों देना, तो हम ड्रग को कम कर सकते हैं. एक तो उस केस में ड्रग रेजिमेन चेंज करना है, या CD4 काउंट अच्छा बढ़ गया है, मान लीजिए CD4 काउंट है वो 500, 600, 800 सेल्स पर mm³ हो गया है, तो उस केस में भी हम कह सकते हैं कि वायरस का लोड कम हुआ है, वी कैन डिक्रीज द डोज ऑफ द ड्रग्स. फाइन. सो उस कंडीशंस में, या फिर नंबर 3 कंडीशन कब हमें करना है, जब वायरल कॉपी बढ़ रहे हैं, CD4 काउंट कम हो रहा है, मदर इम्यूनो सप्रेशन होती जा रही है, तो हमें क्या करना है, ग्रुप 1 को कंटिन्यू करते हुए ग्रुप 2 में प्रोटीएज इनहिबिटर्स को चेंज करना है. वी हैव टू चेंज द प्रोटीएज इनहिबिटर्स एंड वी कैन ऐड दी NNRTI. हम लोग नेविरापिन पेशेंट को ऐड कर सकते हैं. सो डिड यू, आई थिंक दैट इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड व्हेन टू चेंज द ड्रग डोज. ड्रग डोज हमें चेंज करना है या तो मदर को कंडीशन इंप्रूव हो, जब वायरल कॉपीज कम होने लग जाएं, मदर का CD4 काउंट बढ़ जाए, तो उस कंडीशंस में हमें ड्रग के डोज कम करने हैं, या कंडीशंस में जैसे CD4 काउंट कम हो जाए, वायरल कॉपीज बढ़ जाएं, पेशेंट इम्यूनो सप्रेशन होता चला जाए, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप 1 ड्रग के साथ साथ ग्रुप 2 ड्रग में तो PI दे रहे हैं तो प्रोटीएज इनहिबिटर्स को बंद करना है, और उसके बजाय हमें क्या स्टार्ट करना है, नेविरापिन, दैट इज दी NNRTI स्टार्ट करना है. सो दिस इज द बेसिकली बेस्ट टाइम टू चेंज द ड्रग रेजिमेन. अनलेस एंड अंटिल दैट वी शुड नॉट चेंज द ड्रग रेजिमेन. हमें ड्रग रेजिमेन को चेंज ना करके डेली यही सेम ड्रग रेजिमेन कंटिन्यू करना है. ऑल राइट, नाउ लेट मी डिस्कस रिगार्डिंग द टॉक्सिक इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट ऑफ जिडोविडिन एंड अदर ड्रग्स. So guys, as I said earlier, इन ड्रग्स के टॉक्सिक इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं. अगर पेशेंट इनिशियली ले रहा है, अगर उसने अभी इमीडिएटली थोड़े दिनों पहले ही अगर ART स्टार्ट की है, तो पेशेंट को इवन दो टॉलरेट भी नहीं कर पाएगा. ही विल फेस मेनी रिलैप्सेस. सो व्हाट आर द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ART? द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ARTs आर सबसे पहले वेरी कॉमन, अगर जिडोविडिन की बात करें, सो लाइक दिस दे कैन कॉज हेडेक. सबसे ज्यादा कॉमनली क्या करवाते हैं, हेडेक, गिडीनेस, पेशेंट को बहुत ज्यादा कॉमनली चक्कर आते हैं, नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेशेंट विल हैव द नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेशेंट कैन हैव thrombocytopenia, patient can have thrombocytopenia, agranulocytopenia, yeah, sorry, not granulocytopenia, granulocytopenia. Other than that, patient can develop hepatic toxicity. All right. So these are the basic effects. These are the basic problems many of the patients with the ART develops. Headache, giddiness, nausea, vomiting is very common. ये ड्रग्स के साथ साथ चलते रहेंगे पेशेंट्स को लगातार. उसके अलावा पेशेंट को हेपेटाइटिस या हेपेटिक प्रॉब्लम हो जाएगी. पेशेंट कैन डेवलप जॉन्डिस, पेशेंट कैन हैव हेपेटोमेगेली. ये सारी पेशेंट को प्रॉब्लम चलती रहेंगी. पेशेंट को बार बार रिकरेंट जॉन्डिस बहुत ज्यादा होगा. पेशेंट कैन हैव ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, जो WBC के 2 अलग अलग टाइप्स होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस एंड ग्रेनुलोसाइटोसिस. तो
तो जो ग्रेनुलोसाइट सेल्स होती हैं WBC की, उनका अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीनवाइल प्लेटलेट काउंट भी पेशेंट का कम हो जाता है। तो लो प्लेटलेट काउंट एंड लो ग्रेनुलोसाइट काउंट इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ART, that is the antiretroviral therapies. So guys, now the management of like as a pharmacological management of HIV is enough. अब मुझे क्वेश्चन दिमाग में अराइज हो रहा था, how the HIV patient die, और किस कारण से जो HIV पेशेंट होता है उसकी डेथ होती है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द HIV पेशेंट, तो उसके पीछे क्या कारण आप समझ सकते हो। द बेसिक रीजन फॉर द HIV पेशेंट डेथ इज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू द हाइएस्ट रीजन इज ऑपर्चुनिटिक इन्फेक्शन। पेशेंट डाई बिकॉज ऑफ इम्यूनोसप्रेशन कंडीशन, पेशेंट का इम्यूनिटी सप्रेस हो जाता है, दैट विल उस कारण से क्या होगा, पेशेंट विल नॉट हैव एनी ऑफ द फाइटिंग सिस्टम, इम्यून बूस्टर सिस्टम, पेशेंट की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो पूरी खत्म हो जाएगी। नाउ व्हाट हैपेंस, पेशेंट बॉडी वेलकम टू ऑल द डिजीज, जितनी भी डिजीज, जो भी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं वो पेशेंट की बॉडी में वेलकम करने लग जाएंगी। हाउ, बिकॉज CD4 काउंट हैज गॉन जीरो। CD4 काउंट ही जो एक ऐसी चीज थी जो पेशेंट के लिए फाइट कर सकती थी, दैट इज नॉट अवेलेबल नाउ। सो इन दैट कंडीशन व्हाट हैपेंस, पेशेंट विल नॉट हैव द इम्यून पावर एंड पेशेंट विल हैव ऑल द opportunistic infections. Now the question is like what are the basic problems? Patient develops tuberculosis, patient develop pneumonia, patient develop non-Hodgkin's carcinoma, lymphoma, patient may develop the Kaposi sarcoma. So these are the basic, because of these all problems, I have seen many in my clinical practice, many of the patients died because of the tuberculosis or pneumonia when the patient was HIV positive. Fine. So this was the main cause of the death of the HIV positive patients. Now what is the prevention of HIV? How you can prevent the HIV? So when you talk about the prevention of HIV, प्रिवेंशन ऑफ HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनोवायरस जो है इट शुड नॉट ट्रांसफर टू अदर पेशेंट, हाउ यू कैन प्रिवेंट दिस वन। सो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या रहेगी, दैट इज दी सबसे बड़ा फायदे की चीज है हेल्थ एजुकेशन। ऑलराइट, HIV अवेयरनेस, व्हाट इज द वर्ल्ड एड्स डे, 1 दिसंबर। ये क्या होता है, इट इज बेसिकली एड्स अवेयरनेस डे, आप इसके लिए यूज करते हैं एड्स डे। सो ये बेसिकली WHO के द्वारा रिकॉग्नाइज डे है 1 दिसंबर, दैट इज द वर्ल्ड एड्स डे। फाइन। सो व्हाट इज द एड्स अवेयरनेस सिंबल, जब हम लोग एड्स के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं, तो उसका सिंबल क्या है, दैट इज द रेड रिबन। सो रेड रिबन इज द सिंबल ऑफ, रेड रिबन इज द सिंबल ऑफ HIV, या आप ऐसा सकते हो HIV अवेयरनेस। या दिस वन, आई एम नॉट सो गुड इन ऑल द डायग्राम्स एंड प्रेजेंटेशन, सॉरी। फाइन। सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ लाइक व्हेन यू गो फॉर द अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन, द पॉइंट कम्स फर्स्ट इज द हेल्थ एजुकेशन। एजुकेट द पब्लिक रिगार्डिंग द सेफ sex practice, advise the patient to use barrier methods, like they can use the condoms and all to prevent the viral infections. Next one, other than that, educate the mother regarding the breastfeeding. It's very important here. Like why we need to educate the mother regarding the breastfeeding, because the condition is that, as I said you earlier, the WHO recommendation says it is not necessary that like you cannot force any mother that she should not feed the baby, either she is HIV positive or negative. It is totally depend upon the maternal wish. If the mother would like to continue the breastfeeding, she can, but you should always advise the mother to avoid the breastfeeding when she is HIV positive, because as I said earlier, it is almost around some 12 to 14%. Around 12 to 14% chances are there to transfer of the virus from the mother to the newborn baby. So advise the mother to avoid the breastfeeding.
ऑल राइट, देन टू हेल्थ केयर पर्सनल्स की अगर हम बात करें, लाइक एक और चीज, आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, आइसोलेशन ऑफ HIV positive patient. Why the isolation is required? Because the patient is immunosuppressant. Patient can have any time immunosuppression. Patient CD4 count can be down at any time. So in that condition, what we can do? In that condition, we can isolate the patient so that he will not have the opportunistic infections. तो अवसरवादी इंफेक्शन ना हो उसकी बॉडी में, उसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? वी कैन जस्ट आइसोलेट द पेशेंट. सो आइसोलेशन इज रियली रिक्वायर्ड व्हेन द पेशेंट इज इन द इन्फेक्शियस स्टेज और व्हेन द पेशेंट इज हैविंग द opportunistic infections. All right. Other than that, what we can do now? As a nurse, we can use the barrier nursing practice. Barrier nursing practice means what? Barrier nursing practice is for the healthcare workers, basically means for their safety, means they can use the good quality standard gloves, they can use the proper जो basically आज के टाइम में जो नाको के द्वारा एडवाइजेबल है, लेकिन हॉस्पिटल HIV किट इज अवेलेबल, HIV किट आर अवेलेबल. HIV किट में क्या होता है? HIV किट के अंदर जो जितने भी बॉडी प्रोटेक्टिव आइटम्स होते हैं, सारे बॉडी प्रोटेक्टिव आइटम्स जो गुड्स होती हैं वो सारी अवेलेबल होती हैं. लाइक देयर वी विल हैव दी यू विल हैव स्पेक्स, सो गॉगल्स विल बी देयर, सो दैट कोई भी सपोज आप HIV पॉजिटिव पेशेंट का आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसके बॉडी सेक्रेशंस आपकी आंखों में स्प्लिट ना हो, तो उसके स्प्लिट ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए यू कैन यूज द गॉगल्स, यू कैन यूज द ग्लव्स, यू कैन यूज द गुड डबल लेयर प्रोटेक्टेड वायरल बैरियर गाउन यूज कर सकते हैं हम लोग. वी कैन यूज द शू कवर्स, so ताकि what will happen, the body secretions of a HIV patient will not be transferred to the केयर टेकर. जो पेशेंट का केयर टेकर है, जो पेशेंट्स के लिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वो पेशेंट वो बंदे जो एम्प्लॉइज हैं वो इन्फेक्टेड ना हो, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? बैरियर नर्सिंग प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं. फाइन. नेक्स्ट वन, इसके अलावा लाइक अदर देन दैट व्हाट वी कैन बेसिकली एडवाइज, हम लोगों को रीकेपिंग, जो निडल को रीकेप करते हैं उस प्रैक्टिस को थोड़ा बंद करना चाहिए. अदरवाइज बिकॉज व्हेन ए पेशेंट इज लाइक वी शुड कंसिडर ऑल द पेशेंट्स हुमेवर एनी पेशेंट जो हम लोग हॉस्पिटल में ट्रीट करते हैं, वी शुड कंसिडर ऑल द पेशेंट इन्फेक्टेड. अगर हम हर पेशेंट को इन्फेक्टेड के रूप में कंसिडर करेंगे, व्हाट विल बी द रिजल्ट? वी विल बी मोर अवेयर, हम लोग अवेयर ज्यादा रहेंगे, वी विल बी मोर लाइक अटेंटिव, एंड इन दैट कंडीशन यू विल बी हैविंग द लाइक लेस चांस दैट यू विल जस्ट रीकेप द नीडल्स. तो निडल रीकेप को प्रिवेंट करेंगे तो उसका फायदा ये रहेगा, द निडल स्टिक इंजुरीज के जो चांसेस थे वो काफी हद तक कम हो सकते हैं. फाइन. सो गाइज, दीज आर द बेसिकली प्रिकॉशंस ए पेशेंट कैन टेक, just a patient can take, or as a health advice or health education you can provide to the patient relatives just to prevent the transmission of HIV from one patient to the another patient. All right, so this is all about the HIV.